differential equation. Basically, a differential equation, a mathematical relation or equation that involves derivative. Small definition: a mathematical relation that involves derivative. A mathematical relation or equation. Here we write or equation. Sorry. Or equation that involves derivative. सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, अ फंक्शन तब हमें उसका कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड होगा, dy अपॉन dx प्लस 9y इक्वल टू 8, इस टाइप से। तो हमारा ये हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड एग्जाम्पल है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू साइन x। ये भी हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जैसे डेल 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल y अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल 2y अपॉन डेल एक्स डेल टी इक्वल टू cos x into cos x only. This is also a differential equation, but this first example and second, the ordinary differential equation, and third also a partial differential equation. Further we are discuss both types of differential equation, ordinary and partial differential equations. Differential equation are divided into two parts. First part's ordinary differential equation and second part's partial differential equation. Ordinary differential equation and second part's partial differential equation. In further two examples we given ordinary differential equation, and third example we given partial differential equation. In partial differential equation, when ordinary differential equation called total differential equation, but partially differential equation be involves when function independent variables are two in a function. Suppose जैसे कोई फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू x, t, इस टाइप से कोई फंक्शन है, जैसे दिस इज इंडिपेंडेंट, this is x and t are independent variable and y the
dependent variable. So when function depends on more than वन, टू थ्री फोर इस टाइप से, तब हम यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड व्हेन हमारा फंक्शन ओनली है y इक्वल टू एफ एक्स, तब हम यूज करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. We divide again different types of differential equation and divide it into two parts. Here definition थोड़ा लिख लेंगे. Types of differential equation. पॉइंट है हमारा, पॉइंट है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट हमारा लीनियर. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर differential equation. And further we divided linear differential equation two parts: homogeneous and non-homogeneous differential equation. Homogeneous and non-homogeneous. Non-homogeneous differential equation. Again, non-linear differential equation divided into two parts: homogeneous and non-homogeneous differential equation. Homogeneous and non-homogeneous differential equation. Partial differential equation also divided into same linear differential equation and non-linear differential equation. And linear differential equation also divided into two parts. We write in short form. Linear differential equation and non-linear differential equation divided into two parts: homogeneous, non-homogeneous. Again divided non-linear differential equation into two parts: homogeneous, non-homogeneous differential equation. Okay, this is the table right for differential ordinary differential equation, two parts: linear differential equation, non-linear differential equation. Linear differential equation further divided into two parts: homogeneous and non-homogeneous differential equation. Non-linear also divided into two parts: homogeneous and non-homogeneous differential equation. Let's we discuss on one term clearly defined. हम एक एक पार्ट्स को क्लियरली डिफाइन करेंगे. फर्स्ट है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से होगा. ऑर्डिनरी व्हेन फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स. हियर y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. X is a independent variable. Independent variables. Here y is a single dependent variables and x is a single independent variables. So let's here 2 points: single independent variable and single dependent variable. Let's examples: dy upon dx,
plus y equal to sin x। इस टाइप से हमारे को एग्जाम्पल्स है। तो here y is a dependent variable and its derivative dy dx, x is a sin x is a independent variables, sorry, different types of examples, d2i upon dx squares plus dy upon dx here 9 plus y equal to cos x, same types here, one time derivative, here two time derivative, then y is a y and dependent variable, x is an independent variable. Let two again points, single here in this equation, single dependent variable, single dependent variable, single independent variable, and partial differential equation. What is the partial differential equation? When a function and depends on two variables, then use partial differential equation. Here only when single independent variable and single dependent variable, then use ordinary differential equation. That's partial differential equation. Partial differential equation. Y equal to fx comma t. Here two independent variable and y is a single dependent variable in partial differential equations. And then differential form in this partial differential equation, d del, here we use symbol for partial differential equations, del 2y upon del x square plus del 2y upon del x del t and del 2y upon del t स्क्वायर। इस टाइप से कोई हमारा फंक्शन है, या बस सेम इतना ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप से कोई इक्वेशन हमारी है। दिस इज आवर partial differential equation. In this equation, single, right? Single क्या है? Dependent variable. And two independent variable. At least two, कम से कम टू तो होना ही चाहिए पार्शियली के लिए, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर कंडीशन फॉर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट condition for linear ordinary differential equation।
कंडीशन क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए? y इक्वल टू एफ एक्स, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स, इस टाइप से कोई फंक्शन है हमारे पास, दिस इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पावर ऑफ इसके डेरिवेटिव की जो पावर होती है, पावर ऑफ ऑल डेरिवेटिव इन्वॉल्व शुड बी वन, क्या होनी चाहिए? जैसे कोई भी हमारे पास dy अपॉन डी एक्स है, इसकी पावर 1 है, d2y अपॉन डी एक्स, इसकी पावर 3 है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है। तो किसी की पावर 1 है, किसी की पावर 2 है, ऑर्डिनरी लीनियर होने के लिए हमें इसकी पावर डिफरेंशियल टर्म की पावर 1 होनी चाहिए। तो ये हमारा लीनियर टर्म है, ये भी हमारा, बट ये नॉट लीनियर। सो फॉर पावर ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व्ड शुड बी 1, हमारा कंडीशन है पावर ऑफ ऑल डेरिवेटिव should be 1, should be 1। जैसे सपोज dy अपॉन डी एक्स, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, d की पावर 4 अपॉन डी एक्स की पावर 4, इस टाइप से सभी की पावर्स 1 होनी चाहिए एग्जाम्पल्स हमारे लिए, नॉट पावर 2 एंड मोर देन 2, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। जैसे dy अपॉन डी एक्स की होल पावर 2, d2y अपॉन डी एक्स की होल पावर 3, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। ओनली यही वैलिड है फॉर पावर 1, पावर 1 इस टाइप से हमारी पावर 1 होनी चाहिए। फॉर पावर ऑफ ऑल डेरिवेटिव शुड बी 1, और इस टाइप से भी नहीं होनी चाहिए जैसे कोई साइन dy अपॉन डी एक्स, बिकॉज इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं सीरीज में, cos dy अपॉन डी एक्स e की पावर dy अपॉन डी एक्स, इस टाइप से भी नहीं होनी चाहिए फॉर कंडीशन फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्रॉस टर्म भी नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी क्रॉस टर्म, लाइक कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसका डेरिवेटिव का क्रॉस टर्म नहीं, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, ऐसे समझो। जैसे सेकेंड पॉइंट है इसमें, देयर शुड not be contain, not be cross term, there should not be cross term, like इस टाइप से y dy अपॉन डी एक्स, sin y dy अपॉन डी एक्स, cos y d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y d3y सॉरी y e की पावर dy अपॉन डी एक्स, इस टाइप से भी नहीं होना चाहिए। और बेसिकली यहाँ हमारी जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट लिख लो सेम,
power of dependent variable should be 1. लाइक y इस टाइप से, नॉट इस टाइप से होनी चाहिए, नॉट वाई स्क्वायर वाई क्यूब साइन वाई इस टाइप से नहीं होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एग्जाम्पल्स कुछ ले लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दे आर नॉट बी लीनियर। जो फंक्शन हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा वो हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इस टाइप से हम नॉन लीनियर को डिफाइन करेंगे। बेसिकली अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो हमारे लीनियर कंडीशन को फॉलो करेंगे, नॉन लीनियर कंडीशन को फॉलो करेंगे। एग्जांपल्स हमारे हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y dy अपॉन dx प्लस साइन x 0। ये हमारा कौन सा फंक्शन है? ये तो हमारी पावर 1 है, बट फॉर लीनियर कंडीशन के लिए क्रॉस टर्म नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्रॉस टर्म है, तो ये हो गया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा होगा, सेकेंड एग्जाम्पल सपोज कोई लेके चलते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x dy अपॉन dx प्लस 9y इक्वल टू 0 टाइप से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज यहाँ कोई क्रॉस टर्म नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके डेरिवेटिव का है, लेकिन बट y dy dx नहीं होना चाहिए, x का मल्टीप्लाई है वो हमारा लीनियर कंडीशन में आता है। इस टाइप से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा d3y अपॉन dx क्यूब की पावर 1/2 इक्वल टू dy अपॉन dx प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर। इस टाइप से तब हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज पावर यदि हम बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे तो पावर्स तो हमारी इसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, लेकिन suppose let 3/2 here, then we take it one condition or powers should be integers। let next points non-linear differential equations में डिस्कस करेंगे। पावर्स हमारी इंटीजर्स होनी चाहिए, नॉट 1/2 1/3 इस टाइप से भी नहीं होनी चाहिए। तो यह हमारी जो पावर्स है वो 3/2 इंटीजर्स नहीं है, स्क्वायर भी कर देंगे तो यह स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 कैंसिल। फिर भी हमारी जो पावर्स है वो लीनियर नहीं है, 1/2 भी लेंगे तो यह लीनियर नहीं होगी, समझ गए? जो हमारी जो पावर्स होगी, जैसे हमने 1/2 ले लिया और इसका हम इसको बहुत साइड टेकेंगे स्क्वायर, तो ये हमारा 2 इस साइड चला जाएगा। जो हमारी पावर्स होगी इन सभी की
वो लीनियर नहीं होगी, तो ये हमारा फंक्शन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हमारा होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन राइट साइड इक्वल की राइट साइड जो फंक्शन है या तो वो जीरो होगा या कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ एक्स होगा, इस टाइप से हमें लिखना है। तो जो फंक्शन यदि जीरो होगा, राइट साइड जीरो होगा, तो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, एंड कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो हमारी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इस टाइप से होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप से। एक सेकंड। For condition for no homogeneous and non-homogeneous differential equations, dependent variable and its derivative, it's all derivative, v on the left side and function of x and constant we put the right hand side, dependent variable and its dependent variable, condition है इसकी dependent variables and all derivative, its derivative, and derivative v on the left side, v on the left side in equal sign, and जो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव को हम लेफ्ट साइड पुट कर देंगे, एंड जो हमारा राइट हैंड साइड में होगा फंक्शन ऑफ एक्स होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा, या तो जीरो होगा या कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ एक्स होगा, तो उसको हम इक्वल के राइट साइड पुट करेंगे। इफ ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल साइन, इफ इसकी कंडीशंस है, इफ ऑन दी राइट साइड equal sign, in equal sign, zero function of x oblique और constant, homogeneous के लिए this is homogeneous, and this is non-homogeneous. समझ गए? हमारा जब भी इक्वल की राइट साइड जीरो होगा तो हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा, यदि फंक्शन ऑफ एक्स है या कांस्टेंट है तो हमारा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इस टाइप से। जैसे एग्जांपल हमारे होंगे, इसको इस टाइप से लिख लेंगे, y and its derivative, y and its derivative
इक्वल टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स ऑब्लिक कांस्टेंट, इस टाइप से लिख लेंगे। दिस इज होमोजीनियस, दिस इज नॉन होमोजीनियस। This is for the condition for homogeneous and non-homogeneous differential equations के लिए। कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे जैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx dy upon dx plus y equal to 0. This function is ordinary homogeneous differential equation, and when function d2y upon dx square plus 9dy upon dx plus y 3y equal to sin x, this function is, this is homogeneous, this is non-homogeneous differential equation. This example for homogeneous differential equation and this example for non-homogeneous differential equation. Suppose let's consider y equal to p plus sin p upon cos square p plus sin square p. This function is, suppose p equal to dy dx, ये हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल होगा। एंड इस टाइप से फंक्शन हो जाएगा हमारा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइन पी एक्सपेंडेबल है, इसका साइन सीरीज को एक्सपेंड कर सकते इस टाइप से। उसकी जो पावर्स है वो 1 होनी चाहिए, देन भी होमोजीनियस। एंड नॉन होमोजीनियस के लिए समझ गए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। फॉर कंडीशन फॉर लीनियर एंड होमोजीनियस, या नॉन होमोजीनियस होगा या तो होमोजीनियस होगा। इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू p प्लस साइन p, ये हमारा 1 हो जाएगा। इसको हम एक्सपेंड कर सकते साइन को सीरीज फॉर्म में, जबकि हमारी पावर्स है वो उसके डेरिवेटिव की 1 होनी चाहिए, तो तभी हम उसको कंडीशन फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में रखेंगे, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, लीनियर होगा नहीं, नॉन लीनियर होगा बेसिकली। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, नॉन होमोजीनियस होगा या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इसको देख लेंगे फिर से अगेन। ये हमारा जो फंक्शन है इस टाइप से p को लिख सकते हैं हम dy अपॉन dx, बट होमोजीनियस फॉर लीनियर एंड नॉन लीनियर बोथ के लिए, दोनों के लिए ये हमारा लीनियर है, लीनियर एंड होमोजीनियस भी है, एंड ये भी लीनियर है एंड ये होमोजीनियस, सॉरी नॉन होमोजीनियस। ये हमारा फंक्शन हो जाएगा,
नॉन लीनियर, नॉन homogeneous, non-linear and homogeneous.